Hello student, this is Rakhi Misra. Today we will discuss about physics. The chapter is work, energy and power. Now we will able to know that what is the difference work in science and work in our general terms. Let's suppose someone is saying now that I am going to factory to do work. In general terms we are saying that or I am going to market doing some work, or I am coming to a school to study, we are doing some work in general terms. But what is work in terms of physics? To understand this, firstly let's see. Let's suppose this is a block and I apply a force on this block, and block gets displaced. I applied force F on this block and block get displaced D from point A to B. In physics, it is saying that when I applied force on any object, an object get displaced in the direction of force, then we are doing some work. Is it clear? Now what happen when object not get displaced? Or what happen when object reverse get displaced? In that scenario, what we can say कि we are doing work or not? Before discuss that, let's suppose when my direction of force is this and body get displaced this, we can say we have done some work. The mathematical formula of work is force into displacement. It is applying when direction of displacement is the same direction of force. What happened? Let's see another case. Let's suppose it is a block and I pull in this direction. The direction of force is this and the box get displaced over here. It means the angle formed between direction of force and displacement, अगर थीटा एंगल फॉर्म हो जाए, in that case what we are considering, so we can generally say that कि the work will equal to the FD cos theta. Remember this formula simply. After that we are able to know कि where we are working or not working. Let's suppose I said earlier कि if we are continuously applying a force and body get not displaced, then घर में आप लोग के यहाँ दीवार होगा, जनरली हम लोग दीवार को पुश करते हैं क्या दीवार डिस्प्लेस हो जाता है? वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है? ऐसा तो होता नहीं है, वो ऐसे रिजिड फॉर्म में रहता है. तो उस केस में क्या आपने वर्क किया? आप दिन भर दीवार को पुश करते रहिए, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0. क्यों? देखो फिजिक्स बता रहा है क्यों 0 हुआ. वर्क को बोला कि आप F इंटू डी करिए, आपने दीवार पे खूब फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. अब वर्क भी क्या हो जाएगा? 0. इज इट क्लियर? बात समझ में आई कि जनरल टर्म्स में जिसे हम आप कंसीडर करते हैं कि ये वर्क है, इससे स्लाइटर डिफरेंट है कि वर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ साइंस और वी कैन से इट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. कि वर्क होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्या होना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए, उसके बिना तो वर्क पॉसिबल ही नहीं है. दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. आप खूब फोर्स लगाए, जैसे कि देखो मम्मी पापा भी इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझाते हैं
एक बच्चा है, किसी क्लास में पढ़ रहा है, उसने खूब मेहनत की, मेहनत को आप फोर्स से समझिएगा, वो पास नहीं हुआ, 10th में वो क्या हो गया, फेल हो गया, पास नहीं हुआ, इट इज नॉट प्रमोटेड इन 11th, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सेम, जहां वो पहले एग्जैक्टली क्लास 10th में पहले भी था, अपर भी था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो सारे रिश्तेदार और घर वाले क्या बोलते हैं, ये तो पढ़ता ही नहीं है, काम करता ही नहीं है। तो जनरल टर्म्स में भी आप इसको समझ सकते हैं कि व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एंड बॉडी शुड बी गेट डिस्प्लेस। अगर वही बच्चा पास करके 11th में पहुंच जाए तो वो जितना अच्छा नंबर उतना अच्छा उसने काम किया, इस चीज को डिसाइड करते ही नहीं करते। ये आपके जनरल लाइफ का हो गया। दूसरा समझते हैं, जो भी हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था कि एफ डी कॉस थीटा होता है जनरल टर्म में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो, थीटा डिग्री हो। कोई भी थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। लेट सपोज in first case we are applying force in this direction, body is also moving in this direction, there is a box, I push the box and box gets slightly displaced in direction of my force. So both are the same, both are the parallel means theta will equal to the 0 degree. So putting the value of theta over here, fd cos 0, the value of cos 0, it is 1. So what is the work done, fd? In the first case we have discussed over here कि क्या होगा इस केस में, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी सेम डायरेक्शन में होगा तो वही एफ कॉस थीटा की वैल्यू एफ डी के इक्वल आ जाती है। सेकेंड वन, ऐसा क्या हो आप थीटा की वैल्यू चेंज करते जाइए। अब आप थीटा की वैल्यू ले लीजिए 90 डिग्री। अभी इसका भी एग्जांपल आपको देते हैं। आपने थीटा की वैल्यू लिया 90 डिग्री, अब W will equal to the FD cos 90, and you all know what is the value of cos 90, it is equal to the 0. It means doesn't matter what amount of force you are applying and how much body get displaced, but the direction of displacement is 90 degree to the direction of force, it will be equal to the what, 0. आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे खूब फोर्स लगाइए, उसको खूब डिस्प्लेसमेंट करिए, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन 90 डिग्री हो गई तो उस केस में भी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक कूली है, देयर इज अ पोर्टर ऑन द रेलवे स्टेशन, ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ लोड ऑन हिज हेड। अब जब उसने लोड लिया अपने हेड पे तो ऐसे उठाएगा उसको, वो ढेर सारा सूटकेस उसने उठाया और उठा के वो क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। अभी याद रखिएगा केस क्या बताया जा रहा है, वो कहाँ वॉक कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे, कभी इधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है, दोनों ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, चाहे जिधर जाए। अब आप बताइए जब उसने लगेज को उठाया तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, भाई फोर्स तो ऊपर लग रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज व्हाट, अपवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टुवर्ड लेफ्ट और राइट। इट मीन्स इट मेक्स 90 डिग्री, एल फॉर्म हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इट इज 90 डिग्री। अब वो प्लेटफॉर्म पे चाहे 4 घंटे वॉक करे, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ही हैज डन नथिंग, उसने कोई भी काम नहीं किया। जब इज इट क्लियर और नॉट। एफ डी कॉस 90 आपने लगाया, जो भी वैल्यू लगाई, आप कितना भी फोर्स लगा के कितनी भी तेज से वो दौड़ ले प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसने काम नहीं किया। तो वो काम किया कब, इन टर्म्स ऑफ साइंस। सी, इसी पोर्टर का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। भाई रेलवे स्टेशन पे सिर्फ प्लेटफॉर्म थोड़ी ना होता है, वहां पे तो स्टेयर्स भी होती हैं। अब वो स्टेयर्स पे जाएगा, ऐसे वो स्टेयर्स पे जाए,
सपोज करिए, वैसे ऐसे स्टेप वाइज जा रहा है। अब जब वो स्टेयर्स पे गया और वेट को ऐसे लिया हुआ है उसने, तो अभी भी उसकी फोर्स की डायरेक्शन इज व्हाट, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। और सी वेयर इज डिस्प्लेसमेंट from this point to this point, it means we can consider from here to here the net displacement. So it is also the direction of the displacement, both are in the same direction. और हमने अभी यही पढ़ा डेफिनेशन ऑफ वर्क कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई तो वी हैव डन सम पॉजिटिव वर्क. इट मीन्स इन दिस केस इट ऑल्सो एफ डी कॉस जीरो और W will equal to the FD. वो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा और जितना बॉडी डिस्प्लेस करेगा दैट इज वर्क. इज इट क्लियर? थर्ड केस, अब इसी का जस्ट अपोजिट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. अभी उसको सीढ़ी से चढ़ाए थे, अब उसको उतारेंगे हम लोग और देखना कूली कहाँ कहाँ काम करता है. लेट सपोज अब वो नीचे आ रहा है. अब वो क्या आ रहा है, सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी वो बेचारा लगेज रखा हुआ है अपने सर पे इस तरीके से. He has taken a lot of luggage. In this case, what is the direction of force? अभी भी वो कंटिन्यूसली अपने सर पे पकड़ा हुआ है, तो फोर्स तो अपलिफ्ट ही है. फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड. बट what is the direction of displacement? He is coming from this point to this point. It means direction of displacement is what? Downward. दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई. फोर्स अपवर्ड काम कर रहा है, डायरेक्शन डाउनवर्ड काम कर रही है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो वी हैव डिस्कस्ड द वर्क विल बी नेगेटिव. ही हैज डन सम अमाउंट ऑफ वर्क बट वर्क विल बी नेगेटिव. व्हाट? बिकॉज ही हैज चेंज हिज डायरेक्शन. It will be equal to the minus FD. Is it clear? That's all. Thank you for watching this. After that, we will discuss about some numerical question regarding these topics. Okay.